last lecture, I discussed with you that what are those areas, apart from the political frontiers of a country, which include domestic territory, which are included in the domestic territory. There's a floating platform, there are fishing vessels, there are embassies, there are consulates, there are army establishments of a country, etc. Now I'm going to talk about what are those areas which do not include in the domestic territory. कौन से वो चीजें हैं, कौन से जो एरियाज हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज, consulates, army, establishments, of foreign countries belonging to foreign countries set up in a country. मैंने आपसे पहले बताया कि बहुत सारी एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स हैं, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो हमें बिलोंग नहीं करती, वो बाहर के देशों की हैं और वो हमारे देश में एस्टेब्लिश्ड है, वो हमारी नहीं है, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल जापानीज embassy in India doesn't belong to India. American embassy to India, even Pakistan's embassy to India, Bangladesh embassy to India, उनके जितने offices हैं, they don't belong to us. They belong to their own countries. Then international organizations. International organizations such as WHO, UNO, IMF, World Bank, etc. located within the boundaries of a country. Located the boundaries of a country. Boundaries of a country. So, international organization जैसे WHO है, ILO है, UNO है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, जो विच आर लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, जो हमारे मुल्क में है, हिंदुस्तान की टेरिटरी में है, लेकिन वो हमारे नहीं है. दे बिलोंग टू द डोमेस्टिक टेरिटरी, दे बिलोंग टू द होल वर्ल्ड. दे आर नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर टेरिटरी. WHO की पूरा वर्ल्ड टेरिटरी है, UNO का पूरा वर्ल्ड टेरिटरी है, IMF का पूरा वर्ल्ड टेरिटरी. जिस देश में इनके ऑफिसेस हैं उनकी टेरिटरी में ये ऐड नहीं होते. Now I'm going to talk about another very important concept which is used while studying the national income accounting. It's very difficult to understand whole chapter on national income accounting unless we clarify about the concept of normal residents. Normal resident कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है, वो इंडिविजुअल्स हैं, जब वो इंस्टीट्यूशंस हैं who ordinarily reside in the country, जो हमारे हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं और हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं. हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे कमर्शियल बैंक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं. हम सब लोग जो इंडियंस हिंदुस्तान में रहते हैं, वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स. हम ordinarily we reside here. We may be going out for some purpose for a week or two outside, but our center of economic interest का मतलब है
हम सारी एक्टिविटीज विद इन द कंट्री करते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं, यहां हम कमाते हैं, यहां हम खर्चते हैं. We earn, we invest, we save, we build our houses, we build our business establishments without any worry, without any hesitation. क्योंकि हम इसके नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं. मैं एक बार फिर बताऊं, नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉर्मली एक मुल्क में रहते हैं और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो यहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं, फार्मिंग करते हैं और मनी को सेव करते हैं, कमाते हैं, खर्चते हैं. And they build their empires within the country. They are the normal residents of a country. A resident lives and is located within the domestic territory. A resident resides and is normally located within the domestic territory. The domestic country. एक रेजिडेंट नॉर्मली उसी कंट्री में रहता है जहां वो अपना काम करता है. He is located there only. He carries all economic activities within. He carries all economic activities within the country. The country. मैंने आपसे पहले बोला वो काम करता है, जॉब करता है, स्पेंडिंग करता है और इन्वेस्टमेंट करता है सब. लेकिन देयर आर सम एरियाज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट. कुछ लोग ऐसे हैं, these are the people who are our normal residents, but there are some people who are not our normal residents. There are some institutions who are not our normal residents. ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है. बिकॉज मैंने आपसे पहले बोल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां ये पूछा जाता है कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट है, कौन नहीं है, किसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए. नाउ आई विल पास ऑन द डिस्कशन. अब मैं आगे चलूंगा. आई विल डिस्कस दैट व्हाट आर दोज एरियाज, व्हिच आर दोज पीपल, व्हिच आर दोज इंस्टीट्यूशंस which are not considered as normal residents. Now, following are not included in the normal residents of a country. These are the people, these are the institutions who are not included. They are not a part of the normal residents. Number one, foreign tourists. Foreign tourists, visitors, foreign tourists. बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे मुल्क में विजिट करते हैं. They are not a part of normal residents. Visitors who visit a country, visitors who visit a country for recreation. Recreation के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. Holidays. Medical checkup. They come for medical checkup, study, sports, and conferences. प्रतिदिन लाखों लोग
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इस पर्पस के लिए लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जितने फॉरेन टूरिस्ट हमारे मुल्क में आएंगे, दे कम हियर फॉर ए वीक, 2 weeks, a month, as per the permission granted by their respective countries. Visitors who visit our country for recreation, मौज मस्ती के लिए आते हैं, हॉलीडेज मनाने आते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं, फॉर 1 or 2 months, 3 months, रिसर्च करने के लिए आते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ बहुत सारे गेम्स खेलने आते हैं, महीना 2 महीने बैठते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते रहते हैं। ये सारे लोग अपने अपने मुल्क के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे मुल्क के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। देन फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ ऑफ embassies, officials, diplomats, and members of armed forces, of a foreign country, दूसरे मुल्कों से बहुत सारा फॉरेन का स्टाफ आता है एम्बेसीज में। जितने भी एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, वो चाहे जितने मर्जी अरसे के लिए रहे, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो बाहर वाले डिप्लोमेट्स हैं, जैसे एम्बेसडर है और कई उनके साथ उनका जो स्टाफ होता है पूरा, और मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आपको मालूम होना चाहिए, एक मुल्क के, मैंने पहले बता चुका हूं, बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग चंद एक महीनों के लिए उनको दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। वो नॉर्मल रेजिडेंट है अपने अपने मुल्कों के। हमारे मुल्क में ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, such as World Bank, IMF, UNO, ILO, etc. ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस हमारे मुल्क में खुले तो हैं, बट मैंने आपसे पहले बोल दिया, इनके जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी मुल्क के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। इनका ऑफिस, हेड ऑफिस कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका जो स्टेटस है, इट्स अ वर्ल्ड लेवल, इट डजंट बिलोंग टू एनी कंट्री। देन एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज of international organizations, इनके जो एम्प्लॉइज हैं, they are the residents of the country to which they belong. Employees of international organizations are the normal residents of the countries to which they belong. इनके एम्प्लॉइज हमारे नहीं है रेजिडेंट्स, ये सारे अपने अपने जहां जहां के वो लोग हैं, ये उनके रेजिडेंट्स हैं, ये हमारे रेजिडेंट्स नहीं हैं। दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं सब सुनने वाले बच्चों से अपील करूंगा कि जितने भी मेरे आज तक लेक्चर हुए हैं, उनके बारे में अगर कोई डाउट है, कहीं आप रिवीजन चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे
अपना मैसेज करें, हम दोबारा इसको रिपीट भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। और जैसे हर यूनिट, जैसे ये तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो अभी पहला यूनिट है, ये बहुत लंबा यूनिट है। इसमें मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जैसे एक यूनिट ख़त्म होता है उसमें 2-3 टेस्ट पेपर बना के हम बच्चों को दे देंगे, और आपका टेस्ट पेपर का वैल्यूएशन हम खुद उसमें शॉर्ट आंसर भी होगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ताकि आपकी जो इवैल्यूएशन है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है, वो भी साथ साथ हो जाए। तो अगर कहीं आपका डाउट है, आप मेहरबानी करके अपना डाउट क्लियर करें। हम यहाँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठे हैं। यू काइंडली visit our WhatsApp number, whatever has been given down, and once again I appeal, kindly visit the YouTube, the Pioneers Academy.